Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today our topic is respiration in organisms. It's for class 7th and subject science. Dear students, as we earlier discussed in the previous class, cellular respiration. Let me recapitulate some of the important points which we discussed in the earlier topic. That is, our body needs continuous supply of energy. We do different kinds of activities or different functions. For these functions, our body needs energy, and this energy is released when we respire. Cellular respiration, as you know, it is a process of breakdown of food in the cell with the release of energy. This process is called cellular respiration. That means when the food gets broken down, or we can say when it gets oxidized in the cell with the release of energy, this process is called cellular respiration. This thing we discussed in the previous class. Today we will continue the topic with, we have now two main terms here in this topic, that's anaerobic respiration and aerobic respiration. Today we will see what are these kinds of respirations. We will also see what is breathing. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, उनकी सेल्स में ये प्रोसेस होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में होती है. इस दौरान क्या होता है, ये जो फूड होता है, या हम ग्लूकोज भी बोलेंगे, ग्लूकोज ये ब्रोकन डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O, CO2 एंड H2O. इसमें ये फूड हमारा जो हमने फूड खाया हुआ होता है, ये ब्रोकन डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड फॉर दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज needed. That means with the help of oxygen, our food gets broken down, or we can say oxidized. It gets broken down into carbon dioxide and water, and with the release of energy. And during this whole process, energy is released, which is needed by our body for different functions. इस जो एनर्जी इस दौरान निकलती है, ये एनर्जी हमारी बॉडी को ज़रूरत लगती है मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए. ठीक है. नाउ दिस रेस्पिरेशन, where food or glucose gets broken down into carbon dioxide and water with the help of oxygen. This kind of oxygen, for this kind of this respiration, we have special term that is called aerobic respiration. That means the respiration which takes place with the help of oxygen. This respiration is called aerobic respiration. And ये जो फूड है, कभी कभी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कभी कभी ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बगैर भी, ऑक्सीजन की मदद के बगैर भी कभी कभी हम जो फूड खाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. और दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस काइंड ऑफ दिस रेस्पिरेशन और दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, इस किस्म के जो रेस्पिरेशन है जहाँ ऑक्सीजन के मदद के बगैर ही फूड ब्रेकडाउन होता है, उस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है. तो अगर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, वी गेट फूड C6H12O6. ठीक है. इक्वेशनली वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. दिस इज द फार्मूला ऑफ glucose or carbohydrate. ठीक है. This is our food, C6H12O6 is the formula of glucose or carbohydrates.
they get oxidized with the help of oxygen 6O2 molecules. This when this oxygen or when this carbohydrate or glucose gets oxidized with the help of this oxygen 6 times O2, it gives C6 times CO2 plus 6 times H2O plus energy. So this molecule of carbohydrate, it gets oxidized. ठीक है, C6H12O6 is the formula of carbohydrate और ग्लूकोज. ये ऑक्सीडाइज होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से और ये हमें देता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O वाटर प्लस एनर्जी देता है. सो दिस इज द इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. नाउ ग्लूकोज ये जो है कभी कभी तो इस दौरान ये जो रेस्पिरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और एनर्जी हमें मिलती है इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान. ठीक है. या हम इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं. ग्लूकोज, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 plus oxygen, that means glucose gets oxidized, it gives CO2 carbon dioxide plus water H2O plus energy. ठीक है. So this whole process takes place in generally all the organisms, but there are some organisms where this respiration takes place without this oxygen. Say for example, we have one of the organisms that's called yeast. One of the organisms is that's called yeast. Yeast एक organism है. ये जो yeast है ये इसमें जो respiration होती है, these yeasts they can survive with in the absence of oxygen. Yeasts can survive in the absence of oxygen. These yeasts are called anaerobes. That means the process of respiration in these organisms or yeasts takes place without the help of oxygen. ठीक है. सो क्या होता है इसमें, ये जो यीस्ट होता है इसमें जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प के बगैर इनका जो ग्लूकोज, इनकी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. In yeasts, glucose gets broken down, but without the help of oxygen, into alcohol plus carbon dioxide plus energy. And we too sometimes, कभी कभी हम जो इंसान हैं, we humans, हम भी कभी कभी anaerobically, that means without the help of oxygen, हमारी बॉडी में भी कभी कभी रेस्पिरेशन हो जाती है. लेकिन ये रेस्पिरेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम होती है, ये बिल्कुल कम वक्त के लिए होती है ये रेस्पिरेशन. अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं या तेज़ से दौड़ते हैं बहुत वक्त टाइम के लिए, 1-2 घंटों के लिए, या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं हम. ठीक है. उस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. डिमांड ऑफ एनर्जी भी हाई होती है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी हाई होती है. सो जब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब एनर्जी की डिमांड बहुत हाई होती है, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी होती है, तो इस दौरान क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लेस होती है, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होती है. सो इस दौरान हेवी एक्सरसाइज के दौरान इस डिमांड ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारी जो सेल्स है ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करती है.
तो इस दौरान क्या होता है, जो सेल्स में उस टाइम ग्लूकोज होता है, ठीक है, सेल्स में जो ग्लूकोज मौजूद होता है ये एनएरोबिकली ब्रोक डाउन होता है, दैट मीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रोक डाउन होता है। ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी उस टाइम छोड़ता है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड और एनर्जी छोड़ता है हमारी बॉडी में भी। जब हम उस टाइम हम हैवी एक्सरसाइज के दौरान, जो भी हैवी एक्सरसाइज हो, तेज़, चाहे हम तेज़ कभी दौड़े, किसी तेज़ दौड़ में, किसी और हैवी काम के दौरान हमारी मसल जो है उस टाइम उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड लेस होती है, ठीक है। तो उस दौरान जो हमारी मसल सेल्स है, उन मसल सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। सो कभी कभी आपने देखा हो कि हमें वो क्रैम्प्स पड़ जाती है, हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमें क्रैम्प्स पड़ जाती है, ऐसा माश फटा कुछ साथ, ठीक है। सो ये जो क्रैम्प्स है ये इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उस टाइम, या हमारी जो मसल्स है उस टाइम एनएरोबिकली रेस्पायर करती है, ठीक है। क्योंकि इस एनएरोबिकली रेस्पिरेशन के दौरान, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी मसल्स में होता है हैवी एक्सरसाइज के दौरान, उस दौरान जो ग्लूकोज होता है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो ये फट्टे हैं या मसल्स हैं, वन मे हसा माज फुटमुत या मे हसा गाड़ खसमत, ठीक है। सो इन वन क्रैम्प्स, ये क्रैम्प्स इसी वजह से पड़ जाते हैं क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में जमा हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए फिर हम गर्म पानी से या कोई और मसाज करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो उससे ये दूर हो जाता है, ये क्रैम्प्स वैम्प्स फिर दूर हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम ब्रीदिंग का भी देखेंगे। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, वो उस एयर को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार हो, इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। एयर को अंदर लेना, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना इनहेलेशन भी कहते हैं। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उस एयर को बाहर छोड़ना जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वो ये जो ब्रीदिंग है सारा जो अमल है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड्स नोज, ट्रैकिया और विंड पाइप, लंग्स वंग्स एटसेट्रा, ठीक है। सो ब्रीदिंग is actually, it is not respiration, it is actually taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. And this taking in air is called inhalation and giving out carbon dioxide, this is called exhalation, ठीक है। सो ब्रीदिंग रेट जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ब्रीदिंग रेट क्या है पहले आपको ये पता होना है। ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट। ब्रीदिंग रेट हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन, एक आदमी कितनी बार एक मिनट में सांस लेता और छोड़ता है, इसको हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। और वी कैन से द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, ठीक है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, वन ब्रीथ, एक सांस हम एक इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन को बोलते हैं। एक अंदर लेना, एक हवा ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, एक सांस को हम, वन ब्रीथ को हम कहते हैं, वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ठीक है। मतलब एक सांस तब मुकम्मल होती है जब हम एक बार ऑक्सीजन अंदर लेंगे, एक बार ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, उसको हम वन ब्रीथ कहते हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, एवरेज ब्रीदिंग रेट है, वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक नॉर्मल इंसान 15 से 18 बार एक मिनट में सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, अंदर लेता है, छोड़ता है। तो जब हैवी एक्सरसाइज हो, हैवी एक्सरसाइज के दौरान ये जो ब्रीदिंग रेट है हमारी 25 बार भी एक मिनट में हो सकती है। दैट मीन्स कि ए पर्सन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कैन his breathing rate can increase up to 25 times per minute during heavy exercise. So this was all about today's topic.
inshallah tomorrow we will continue this chapter. Till then, Allah Hafiz.